پوری اردو دنیا میں جس کی نظامت کے چرچے ہیں وہ شخصیت آپ کے درمیان ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر ان کا تالیوں میں استقبال کرے. عالی جناب انور جلال پوری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں. برادرم راحت اندوری صاحب، وشنو سکسینہ جی، محترم وجاہت کریم صاحب، نسیم الرحمان صاحب، ڈاکٹر کلیم قیصر صاحب، ڈاکٹر عزیز صاحب، مسز وجاہت کریم، ڈاکٹر سریتا صاحبہ، راشد کمال سامانی صاحب، اور فراق مجنو اور عمر قریشی کی سرزمین کے محترم سامعین، آپ کی تہذیب اور آپ کی شرافتوں کے حضور میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. مشاعرہ ایک کالج، ایک ادارے میں، ایک تعلیمی ادارے میں ہو رہا ہے، اس لیے میں فراق گورکھپوری کے 4 مصروں سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں. ڈاکٹر عزیز صاحب، فراق صاحب نے کہا تھا کہ ایک خواب کی تعبیر تو تعبیر نہیں، ایک خواب کی تعبیر تو تعبیر نہیں، ایک حلقہ زنجیر تو زنجیر نہیں، تقدیر تو قوموں کی ہوا کرتی ہے، ایک شخص کی قسمت کوئی تقدیر نہیں. یہ مشاعرہ ایک کالج میں ہو رہا ہے جہاں 1 صدی سے تعلیم دی جا رہی. تعلیم کا مقصد ایک شخص کو مہذب بنانا نہیں ہے، تعلیم کا مقصد ایک شخص کو تعلیم یافتہ بنانا نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مقصد تب پورا ہوگا جب پوری قوم تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہو جائے. یہ بات فراق نے کہی تھی، لیکن یہ بات ہزاروں سال سے ہندوستان کے شعور میں چھپی ہوئی ہے، اس لیے کہ ایک شخص تو ہر قوم میں، ہر فرقے میں، ہر برادری میں اعلیٰ تعلیم یافتہ مل جائے گا. ایک شخص سرمایہ دار مل جائے گا ہر قوم میں، ہر برادری میں، لیکن اس ایک شخص کے سرمایہ دار ہونے سے یا تعلیم یافتہ ہونے سے پوری قوم اپنا سر بلند کر کے نہیں چل پائے گی. پوری قوم اپنا سر بلند کر کے تب چل پائے گی جب پوری قوم میں یہ شعور ہو کہ ہمارے گھر کا ہر فرد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو. اس ادارے میں 1 صدی سے تعلیم دی جا رہی ہے، اعلیٰ تعلیم کی طرف آپ رخ کر رہے ہیں. کاش اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا آپ اپنا عقیدہ بنا لیں، اپنا ایمان بنا لیں، اپنا مذہبی فریضہ بنا لیں. جب تک آپ جیسے مذہبی فریضہ نماز پڑھنا ہے، اسی طرح سے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ ہے، اسی طرح علم کو جب تک آپ فرض اپنے اوپر نہیں کریں گے تب تک پوری قوم تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتی. اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پوری قوم کو تعلیم یافتہ بنایا جائے، تاکہ اقبال نے جو وہ بات کہی تھی 1 صدی پہلے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یا غالب نے 250 سال پہلے یہ کہا تھا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم غالب، ہم نے دشت امکا کو ایک نقش پا پایا. پوری کائنات کو ایک قدم چل کے غالب کی بلندی فکر ختم کر رہی ہے، مگر 250 سال پہلے غالب جیسا شخص یہ کہہ گیا، مگر ہم نے شاعری کے ذریعے بھی اپنی تربیت نہیں کی. 1400 سال پہلے تعلیم کے بارے میں کیا بات کہی گئی، ہم نے اس پر بھی عمل نہیں کیا. لیکن ندیوں کے درمیان پلوں کے نیچے سے بے انتہا پانی بہہ چکا ہے، اب اس سے زیادہ پانی نہ بہنے دیجیے اور اپنی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے تیار کر لیجیے. اس لیے کہ اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سماج میں آپ کا لوگوں سے مقابلہ ہے، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے ملکوں میں آپ کے ملک کا
क्या मकाम है और आपके पूरे मुल्क में आपकी क्या हैसियत और क्या मकाम है, जब तक इस अंदाज से आप नहीं सोचेंगे, जब तक आप कम्पिटिटिव जहन न बनाएंगे, मुकाबला जाती जहन न बनाएंगे, तब तक आप समाज में सर उठा के नहीं चल सकते। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें अपना हिसाब लेने की ज़रूरत है। इकबाल ने कहा था कि सूरत खुर्शीद है, दस्ते क़ज़ा में वो कौम करती है जो हर ज़मां अपने अमल का हिसाब। आपको हर 10 साल के बाद अपने अमल का हिसाब करना पड़ेगा कि 10 साल पहले हम जहाँ थे, हमारी नस्ल, हमारा ख़ानदान, हमारा समाज इस 10 साल में कितना आगे बढ़ा है। जब तक ये अंदाज़ सोच कर नहीं होगा, तब तक आपकी आँखों में तरक्की की चमक नहीं पैदा होगी। इन लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत तकरीरें हो चुकी हैं, अब किसी तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मुशायरा कौमी यकजहती के तसव्वुर पर मबनी एक कीमती खूबसूरत नज़्म से मुशायरे का आगाज़ करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये उर्दू ज़बान है जो ऐलान करती है वतन की मोहब्बत के सिलसिले में कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। तो आइए इसी रेत से पानी निकालने की कोशिश की जाए और वतन की मोहब्बत जो है वो रेत के एक एक ज़र्रे में हम देखने की कोशिश करें और एक एक ज़र्रे का एहतराम करें। आइए शबीना अदीब साहिबा जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायरा हैं, उनकी एक कौमी नज़्म से मुशायरे का खूबसूरत आगाज़ हो रहा है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक उनका इंतज़ार कर रहा है। शबीना अदीब साहिबा। गोरखपुर के सभी मोहतरम और बहुत ही सुखद फहम बाज़ौक़ समातें, मेरे लिए वो थोड़ी सी खामोशी अख्तियार कर लें, क्योंकि आप एक अदब की महफिल में बैठे हैं तो उस का सबूत भी पेश करें। और जिस माहौल की मैं आदी हूँ, किसी भी तरह के माहौल में नहीं पढ़ सकती जिस तरह की आप इस तरह मैं देख रही हूँ। बहरहाल कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी खुशनसीबी के डाइस पर बहुत ही काबिल कदर शख्सियात कलीमुल्लाह साहब, मेरे मोहतरम वसीम भाई, मेरे करम फरमा रिजवान साहब, डॉक्टर अजीज़ साहब और हमारे मोहतरम सभी शोरा, मोहतरम राहत भाई, हम सब, आप सब तो हैं ही, आप ही की वजह से तो हम सब हैं। चचा को देखिए, हमारे चचा भी बैठे हुए हैं यहाँ, और चचा के सारे भतीजे जो हैं वो माशाल्लाह पूरी तरह से इस मुशायरे को मुशायरा बनाएंगे और एक तारीख लिखेंगे आज की इस खूबसूरत शाम में। तो इस वक्त चूँकि मैं जिस तरह का माहौल मैं चाहती हूँ, एक कौमी तराने के लिए थोड़ी देर के लिए आप तहजीब का दामन थामे रहें। उर्दू के दामन पे खुदा न करे कोई ऐसा दाग लगे कि हमें भी तकलीफ हो और आपको भी तकलीफ हो और हमें अफसोस हो कि हम बहरहाल चूँकि सब अपने लोग हैं। मैं बहुत आई हूँ गोरखपुर, मुझे मालूम है कि गोरखपुर में कितनी खूबसूरत और कितनी सुखद फहम समाते हैं और कितनी अच्छी शायरी सुनी जाती है। इस वक्त मैं कौमी तराने से इस खूबसूरत मुशायरे का आगाज़ करती हूँ और चाहती ये हूँ कि यहीं से आप शरीक हो जाइए, जुड़ जाइए, यहीं से मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए। इतनी सी इल्तिजा करना चाहती हूँ आप सबको कि शिरकत पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। सुने कि मेरे वतन के जैसा, अरे सुन ले, मुझे मालूम है कि जब बहन खड़ी होती है तो भाइयों को इतनी ही खुशी होती है, मुझे पता है। सुने, बिल्कुल माहौल बना दे, एक अदबी माहौल, एक खूबसूरत माहौल और एक मेयार भी कायम रहे, अदब भी कायम रहे, बस इतनी सी इल्तिजा। सुने कि मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है,
मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है, ये चांद से भी प्यारा, तारों से भी हंसी है, मेरे वतन के जैसा बहुत अच्छे, वाह कोई वतन नहीं है। दादो तहसीन की सदाएं बुलंद करते रहे ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मुझे लगता रहे कि आप सब इस महफिल में शरीक हैं कि पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना, नदियों से आके नदियां आपस में मिल रही हैं, कलियां मोहब्बतों की शाखों पे खिल रही हैं, ये सरजमीन अपनी जन्नत से कम नहीं है, क्या कहने, वाह वाह, के जैसा कोई वतन नहीं है। बहुत अच्छे, शुक्रिया वाह, कि वाह। हमारे मोहतरम शोरा ने मुझे दादो तहसीन से नवाजा, मेरी खुशनसीबी। दाएं और बाएं जो लोग बैठे हैं मैं चाहती हूँ वो भी थोड़ा सा शरीक हो और इस मुशायरे को मुशायरा बनाए। जिनको कुर्सी मिल जाती है वो थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं तो थोड़ी सी शिकायत हो जाती है, तो मैं चाहती हूँ कुर्सी वाले जरा सा जुड़े और इस मुशायरे की एक तारीफ लिखें, उनकी शिरकत हो और नवाज़ें अपनी मोहब्बतों से ले। कि शिमला हो या मसूरी या बम्बई की राहें, शिमला हो या मसूरी या बम्बई की राहें, मंजर सभी हंसी है, हटती नहीं निगाहें, मंजर सभी हंसी है, हटती नहीं निगाहें, खुशबू लुटाने वाली फूलों की डालियां हैं, खेतों में लहलहाती गेहूं की बालियां हैं, हर शहर खूबसूरत, हर गांव दिल नशी है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे का मकसद कि हम अमन का और मोहब्बत का पैगाम दें, तो मैं एक वन पेश करती हूँ और दुआ चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा, ज़हन में रखें, मुझे अपनी दुआएं दें कि इसकी नज़र में हिंदू मुस्लिम है सब बराबर, इसकी नज़र में हिंदू मुस्लिम है सब बराबर, मिलजुल के रह रहे हैं मुद्दत से सब यहाँ पर, मिलजुल के रह रहे हैं मुद्दत से सब यहाँ पर, जो है अमीर उन पर ये ममता लौटाए, मजदूर को भी अपने पहलू में ये सुलाए, क्या कहते, वाह, माओ के गोद जैसी इस मुल्क की ज़मीं है, मेरे वतन के जैसा, मेरे वतन के जैसा कोई
स्त्रीपन बनकर आप सबसे इजाजत, चूंकि मेरे लिए हुक्म था इसलिए मैं हाजिर हुई। मैंने भी आपकी दुआ से हिंदुस्तान के बाहर अपने बड़ों की सरपरस्ती में, चाहे वो निदा साहब हो, चाहे वो राहत भाई हो, मोहतरम वसीम भाई हो, इनकी सरपरस्ती में मैंने भी हिंदुस्तान के बाहर बहुत सफ़र किया, बहुत गई हूँ। लेकिन अपना अजीम हिंदुस्तान जैसा कोई मुल्क ना तो हुआ है और ना होगा, मुझे नजर ही नहीं आया। मैं एक बंद के जरिए आप जोरदार तालियां, हालांकि मुशायरे की कतई तहजीब नहीं है, लेकिन इस मुशायरे की कामयाबी के लिए और इस मुशायरे में आने वाले शोरा के लिए, हम इस्तकबाल के लिए उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। मैं शरीक करती हूँ और आपकी दुआ चाहती हूँ। सुने कि अमेरिका हो कि लंदन, किस्मत ने सब दिखाया। अमेरिका हो के लंदन, किस्मत ने सब दिखाया। अपना ही देश लेकिन बाहर भी याद आया। अपना ही देश लेकिन बाहर भी याद आया। भारत से दूर रहकर बेचैन जिंदगी थी। भारत से दूर रहकर बेचैन जिंदगी थी। लौटे तो इस वतन की मिट्टी ये कह रही थी। हिंदुस्तानियों के दिल का सुकून यही है। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं। क्या कहने शबीना साहिबा जिंदाबाद। मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। इकबाल ने भी कहा था कि खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। फिर बात आगे बढ़ी तो हमारे दूसरे शोरा ने ये कहा कि आए वतन, आए वतन, आए वतन, आए वतन, तेरी खातिर सभी कुछ लुटा देंगे हम। जो भी जन्नत का पूछेगा हमसे पता, राह कश्मीर उसको बता देंगे। तो उर्दू शायरी वतन की मोहब्बत से सदियों से सरशार है। अमीर खुसरू से लेके आज प्रोफेसर वसीम बरेलवी, निदा फाजली और राहत इंदौरी तक वतन के नग़मे शायरी में इस तरह से जज्ब हैं कि शायरी से वो नग़मे अलग नहीं किए जा सकते।